اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے، مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100، 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، اس وقت دل دہلا دینے والی خبر دنیا کی جنت کہے جانے والے کشمیر سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، جموں اینڈ کشمیر کا ایک بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے پہلگام۔ جب بھی کوئی کشمیر جاتا ہے تو پہلگام ضرور جاتا ہے۔ میں بھی جب گیا تھا تو پہلگام گیا تھا، اور بہت ہی اللہ نے خوبصورت اس علاقے کو بنایا ہے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ گزشتہ کل دہشت گردانہ اور آتنکوادی حملہ ہوا ہے پہلگام میں، اور 30 سے زیادہ لوگوں کی موت کا اندیشہ بتایا جا رہا ہے۔ وزیر داخلہ امیت شاہ کشمیر پہنچے ہیں، اور صدر مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی، کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے سمیت دیگر نے اس آتنکوادی حملے کی سخت مذمت کی ہے، نندا کی ہے، اور دہشت گردوں کو سبق سکھانے کا عزم دہرایا ہے۔ NIA کو جانچ کا حکم دے دیا گیا ہے۔ نریندر جی مودی نے کہا ہے کہ حملہ آوروں کو بخشا نہیں جائے گا، وہیں پر امیت شاہ نے کہا کہ ہم سخت کارروائی کریں گے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ حکومت دعوے کرنے کے بجائے اقدام کرے، کیونکہ حکومت آج تک دعوے کرتے آئی ہے۔ اس سے پہلے بھی ہمارے 40 سے زیادہ جوان شہید ہوئے تھے، آج تک کچھ نہیں ہوا۔ ملکارجن کھڑگے نے کہا کہ بزدلانہ حملہ یہ انسانیت پر دھبا ہے۔ وہیں پر عمر عبداللہ نے کہا کہ سیاحوں پر حملہ قابل نفرت عمل ہے۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی 2 روز کے دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے ہیں۔ جی ہاں، آج تک وہ منی پور نہیں پہنچے، اور ابھی کشمیر میں حالات خراب ہو چکے ہیں، دہشت گردانہ حملہ ہوا ہے۔ انہیں سعودی عرب کا لوگ کہہ رہے ہیں کہ دورہ کینسل کر دینا چاہیے تھا اور کشمیر پہنچنا چاہیے تھا، مگر کشمیر، منی پور ایسے علاقوں میں وزیر اعظم نہیں جاتے ہیں، انہیں وقت بھی نہیں ہے، یا اللہ جانے 56 انچ کا سینہ کیوں ڈرتا ہے ایسی جگہوں پر جانے کے لیے۔ خیر، وزیر اعظم نریندر مودی 2 روزہ دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے ہیں۔ جے رام رمیش نے شاہ سعود کے 1955 کے دورے کی یاد دلائی۔ وزیر اعظم نریندر مودی منگل کے روز یعنی گزشتہ کل سعودی عرب کے 2 روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہو گئے۔ یہ دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب دنیا میں سفارتی تعاون تیزی سے بدل رہا ہے، اور ہندوستان مغربی ایشیا کے ساتھ اپنے اسٹریٹجک تعلقات کو مزید گہرا کرنا چاہتا ہے۔ ناظرین، دہلی سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، دہلی میں BJP کی حکومت آ چکی ہے، اب ظاہر بات ہے وہاں بھی اچھے دن آئیں گے۔
तो अच्छे दिन आ गए हैं। अभी फिलहाल दिल्ली शदीद गर्मी और बिजली कटौती, यानी एक तरफ तो गर्मी और यानी ऊपर का अजाब और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी का अजाब कि दिल्ली वालों को बिजली काटी जा रही है। अब बिजली कटौती से दिल्ली बड़ा परेशान है। अब दिल्ली के साबिक वजीर आला एक्स सीएम आतिशी ने वजीर आला रेखा गुप्ता पर सख्त हमला किया, क्योंकि रेखा गुप्ता बीजेपी की लीडर है और बीजेपी ने उन्हें वहां का मुख्यमंत्री बनाया है। तो आतिशी ने वजीर आला रेखा गुप्ता पर सख्त हमला किया और लोग सोशल मीडिया पर भी अंधभक्तों को, गोबर भक्तों को और हिंदुत्व की बात करने वालों को लोग सोशल मीडिया पर कोस रहे हैं कि ये लो अब तुम्हारी हिंदू पार्टी आ गई है, ये लो दिल्ली वालों अब बिजली की कटौती झेलो। नाज़रीन, तीसरी बड़ी खबर इस वक्त बंगाल को लेकर आ रही है। जी हां, पप्पू यादव इन्होंने कहा कि बीजेपी इस जन्म में बंगाल कभी नहीं जीत सकती। पप्पू यादव ने सदर राज के मुतालबे पर, क्योंकि बीजेपी यह डिमांड कर रही कि बंगाल में सदर राज, राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, तो पप्पू यादव ने सदर राज के मुतालबे पर बीजेपी पर गुस्सा निकाला। मुर्शिदाबाद में तशद्दुद और पूरे मगरबी बंगाल की सूरत हाल के पेश नज़र बीजेपी ने वहां सदर राज नाफिज करने का डिमांड किया है। बीजेपी लीडरों का कहना है कि बंगाल में वक्फ एक्ट के मुखालफत के नाम पर जिहादियों की तरफ से तशद्दुद, हिंसा फैलाई जा रही है, हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है और मुल्क दुश्मन ताकतों को खुली छूट दे दी गई है। मगरबी बंगाल पूरी तरह जल रहा है। हुकूमत और इंतजामिया सूरत हाल को संभालने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। ऐसे में वहां सदर राज लगाया जाना चाहिए। बीजेपी लीडरों के इस मुतालबे के बाद अपोजिशन बीजेपी पर हमला आवर है। तो इस पर पप्पू यादव ने कहा कि जब बीजेपी कहीं पर इलेक्शन नहीं जीत सकती तो वहां फिर सदर राज, राष्ट्रपति शासन का डिमांड करती है। अगला दिन बड़ी अच्छी खबर आ रही है। जी हां, अभी चंद दिनों पहले ही वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल घटिया तरीके से मुसलमानों का अपमान किया था और पंक्चर बनाने वाले कहा था। लेकिन अब आपको खबर बता दूं कि पंक्चर बनाने वाले का बेटा इकबाल अहमद यूपीएससी में कामयाब हो गया। अभी चंद दिनों पहले ही वजीर आजम ने मुसलमानों पर तंज किया था कि वो पंक्चर बनाते हैं। जी हां, इससे आगे नहीं सोचते, मगर मोदी के इस कौल को उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के इकबाल अहमद ने गलत साबित कर दिया। इकबाल अहमद यूपीएससी इम्तिहान में 998 रैंक लेकर टॉप रहे। उनके वालिद वाकई में साइकिल की दुकान चलाते हैं और पंक्चर बनाते हैं। इकबाल अहमद ने मुल्क के सबसे मुश्किल इम्तिहान में नुमाया कामयाबी हासिल करके अपने घर, खानदान और प्रदेश का नाम रोशन किया है। अगला दिन लाडली बहनों के लिए बड़ी खबर है। जी हाँ, बल्कि बुरी खबर है। और मैं पहले ही कह रहा था कि देखो लाडली बहनों, ये जो तुमको पैसा दिया जा रहा है योजना के नाम पर, ये बदमाशी है और ये इलेक्शन जीतने के लिए। जैसे ही बीजेपी इलेक्शन जीत जाएगी सारी लाडली बहनें मर जाएगी, शमशान भेज दी जाएगी। अब लाडली बहनों के पैसे बंद है और अब खबर आ रही है कि लाडली बहन स्कीम की अगली किस्त पर सस्पेंस बरकरार है। एक तरफ महिलाएं इंतजार में हैं और हुकूमत मुकम्मल तौर पर खामोश है। जबकि बहनों का हाल यह है कि बहनें नजरें जमाए बैठी है। बहुत सी बहनें रोजाना बैंकों में लंबी लंबी कतारों में खड़ी रहती है, ये चेक करती है कि उनके खातों में रकम जमा हुई या नहीं हुई। हुकूमत की जानिब से मिलने वाली मालूमात के मुताबिक अब तक हुकूमत की जानिब से अप्रैल के महीने की किस्त जारी नहीं की गई। नाज़रीन, मुल्क में एक काना बाबा है जो कभी मुसलमानों के स्टेज से, जमीयत उलमा के स्टेज से एकता, मोहब्बत, अमन, शांति की बात करता था, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी की गोद में बैठा, बीजेपी की गोद में बैठा, बीजेपी ने धंधा दिया, खूब धंधा किया और बाबा सबसे मालदार आदमी बाबा बन गया। अब वही बाबा बीजेपी की गोद में बैठने के बाद बिल्कुल नीच किस्म की हरकतें और बातें करने लगा। बीच में बाबा ने शरबत जिहाद लाया था। जी हाँ,
शरबत जिहाद। अब बाबा रामदेव का ये जो शरबत जिहाद वाला बयान है दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचा और दिल्ली हाई कोर्ट ने बाबा को, बेशरम बाबा को फटकार लगाई। ये लोग बेशरम और बेगैरत हैं, इनको फटकार लगाने से और बोलने से कुछ नहीं होता। खैर हाई कोर्ट ने वीडियो हटाने का हुक्म दिया है, यानी जिसमें बाबा ने नीच किस्म की बातें की है और मुल्क में नफरत फैलाने का काम किया है शरबत जिहाद के नाम पर, तो बाबा को हुक्म दिया गया है कि तुमने ये पहले तो घटिया हरकत की और अब वो जो तुमने गंदगी अपनी जबान से निकाली है नफरतें मुल्क में फैलाने के लिए, उस वीडियो को हटाया जाए, ऐसा कोर्ट ने आदेश दिया है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है औकाफ को लेकर। आप जानते हैं कि वक्फ एक्ट 2025 जो एक नापाक किस्म का शरारती कानून पास किया गया है ताकि मुसलमानों की औकाफ की लाखों एकड़ ज़मीनों को नरेंद्र मोदी और बीजेपी हड़प करे, उनके नापाक नियतें हैं। लेकिन जमीयत उलमा हज़रत मौलाना अरशद मदनी दबाकर खुलकर मैदान में हुकूमत के खिलाफ आ गई है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि जमीयत उलमा हिंद बहुत जल्द तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करेगी क्योंकि नया वक्फ कानून ये मजहब में मुदाखलत है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि हम बहुत जल्द तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करेंगे और लोगों को बताएंगे कि नया वक्फ कानून कितना घटिया किस्म का कानून है और किस तरीके से वो हमारे मजहब में इंटरफेयर करता है और किस तरीके से ये नया कानून संविधान के भी, दस्तूर के भी खिलाफ है। इस मौके पर रुकने पार्लियामेंट धर्मेंद्र यादव ने ये कहा कि वक्फ की खतीर ज़मीनें बीजेपी को बर्दाश्त नहीं और बीजेपी अब वक्फ की जमीनों को नापाक तरीके से कानून बनाकर हड़पना चाहती है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि यह वक्फ एक्ट किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा क्योंकि ये डायरेक्ट हमारे मजहब में दखल अंदाजी है और मुसलमान हर चीज़ से समझौता कर सकता है लेकिन शरीयत में मुदाखलत किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि ये कहाँ का इंसाफ है कि चीज़ हमारी हो और रखवाली कोई और करे, वक्फ को बचाना हमारा मजहबी फरीजा है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, टाइम मैगज़ीन जिसमें दुनिया की 100 बाअसर शख्सियात की फहरिस्त आई है। जी हाँ, हमारे विश्व गुरु जिनको हमारी रखेल मीडिया विश्व गुरु बनाने में जर्रा भी कसर बाकी नहीं रख रही है, हमारे विश्व गुरु नरेंद्र जी मोदी का दुनिया की 100 बाअसर शख्सियात में जिक्र भी नहीं, उनका नाम नहीं। अच्छा, कमाल की बात है कि हमसे छोटा सा देश बांग्लादेश के जो अभी सरबराह है मोहम्मद यूनुस, उनका दुनिया की 100 बाअसर शख्सियात की लिस्ट में उनका नाम है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि दुनिया हमारे विश्व गुरु को नहीं मानती है, उनका नाम दुनिया की 100 बाअसर शख्सियात की लिस्ट में नहीं है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही रियासत महाराष्ट्र के नागपुर फसाद को लेकर। जी हाँ, आप जानते हैं कि नागपुर में फसादात फूट पड़े थे और बड़ा बुरा माहौल बना था। खैर, खबर आ रही है कि उस फसादात में जो मुलजिम बनाए गए थे हामिद इंजीनियर, उनकी ज़मानत मंजूर हो गई और खबरें हैं कि उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के रजाकारों के खिलाफ शिकायत की थी, इसलिए उन्हें फंसाया गया। यानी विश्व हिंदू परिषद के आतंकियों का जिक्र करना और उनकी शिकायत करना, इस पर भी किसी मुसलमान को फंसाया जा सकता है। एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की अदालत ने महाराष्ट्र के नागपुर में 17 मार्च को हुए तशद्दुद के मामले में गिरफ्तार शुदा उमर रसीदा शख्स हामिद इंजीनियर की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने उन्हें 50,000 के जाती मचलके पर रिहा किए जाने का हुक्म जारी किया है और सबूत के खिलाफ छेड़छाड़ न करने की ताकीद की है। मुलजिम हामिद इंजीनियर ने अपने इल्जामात में ये कहा है कि मुझे इस वक्त इसलिए फंसाया गया है क्योंकि मैंने विश्व हिंदू परिषद के 17 रजाकारों कारकुनों के खिलाफ शिकायत की थी जिन्होंने औरंगजेब के मकबरे के ताल्लुक से इश्तियाल अंगेज नारे लगाए थे। लिहाजा बतौर इंतकाम, बदले के तौर पर मुझ पर झूठा मुकदमा तैयार किया गया।
मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, बैक्टीरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हकीम फरीद जो कि खानदानी देसी दवाओं से इलाज करते आ रहे हैं, जैसे मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, खुजली, बवासीर, खून या मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, भी कांटेक्ट।